ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सवसाहुणं नमो लोये सव्वसाहनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सौवपावप्रणसनो समपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मङ्गलाणं च समेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पूजा अरे તમે તો બહુ ટાઈમ પછી મળ્યા હેલો જય સચ્ચિદાનંદ બેસો 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 બોલો ભાઈનું નામ શું રાજનભાઈ તમારું બેકગ્રાઉન્ડ પહેલા આવેલા છે ને તો ભાવનગરના છે હા સત્સંગનું તો બધું ખબર છે એટલે તમને મોટા દાદા હતા ત્યાંથી હું આટલો હતો ત્યારે દાદાને મળેલો છું વડોદરા. અરે વાહ તારું નામ શું બેટા ઓજસ. ઓજસ हाँ વેરી ગુડ गुजराती में करूँगा बात चलेगा ना જી જી એ કેટલા પ્રકારના બધા જ્ઞાન છે ડૉક્ટરીનું જ્ઞાન તમને ડૉક્ટર બનાવે એન્જિનિયરનું એન્જિનિયર બનાવે હોમમેકર થઈ છે ને તેવી રીતે એક જ્ઞાન એવું છે કે જે જ્ઞાનથી તમને તમારી સાચી ઓળખાણ થાય અને એ જ્ઞાનથી પછી તમને આ જગતનું રહસ્ય ખબર પડે કે શું છે શેનું સૌથી મોટું રહસ્ય હું કોણ છું હું ક્યાંથી આવ્યો હું ક્યાં જવાનો અને જીવન મરણ શું છે સુખ દુઃખ શું છે આ બધા પ્રાણીઓ છે પ્રાણી સૃષ્ટિ જીવ સૃષ્ટિ શું છે આ બધાનો જવાબ તમને મળે અને એ જવાબ મળ્યો તો તમને બધા સમાધાન થઈ જાય અને મોટામાં મોટું આજે ને હમણાં એ સમજણથી તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સુખી રહી શકો આનંદમાં રહી શકો સુખી નહીં આનંદમાં રહી શકો સુખ દુઃખ આવે ને જાય પણ તમારો આનંદ એટલે એ ક્યારેય જાય નહીં સવાર થાય છે રાત થાય છે સંજોગો આવે છે ને સંજોગો જાય છે પણ આ જ્ઞાન જે જ્ઞાન કૃષ્ણ ભગવાન પાસે હતું રામ ભગવાન પાસે હતું મહાવીર ભગવાન પાસે હતું એ જ્ઞાન આપણને મળી જાય અને એ જ્ઞાન આ બધા સંસારી હતા સંસારીએ હતા અને એમની પાસે આ જ્ઞાને મળેલું એટલે એ જ્ઞાનથી જય સચ્ચિદાનંદ એ જ્ઞાનથી એમની જીવનની પરિસ્થિતિમાં સારી રીતે રહ્યા અને રહીને મુક્ત પણ થયા એ વાત એટલે એ જ્ઞાન બધા પાસે હોતું નથી એ જ્ઞાનની જાણકારી સ્થૂળ રૂપે તમને આપે પણ એ જ્ઞાન આપણું હોવાપણું છે કે જે આપણે પોતે છીએ એ જ્યારે તમને સમજાય ને ત્યારે તમે એ ધર્મયુક્ત જીવન જીવો કે જેનાથી તમને ક્યારે પણ આ બધી બદલતી અવસ્થાઓમાં સંજોગો બદલાય
પણ તમારા કર્મના ધક્કાથી તમને ધક્કો વાગે પણ તમે પડી ના જાઓ અને તમે બીજાને પાડો નહીં. બંને છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ગુજરાતી હા બધું ગુજરાતી નહીં હોય તો મને કહેજો પછી. એટલે પછી આ તો બેબી ગુજરાતી બધું ઘણા વખતથી સાંભળે છે ને એટલે. હરિઓમ. બોલો. એટલે એ જ્ઞાન જાણવાની, એ જ્ઞાન સમજવાની અને એ જ્ઞાનથી જીવવાની જરૂરત છે. જેમ આપણે કહીએ કે ડૉક્ટર હોય તો ડૉક્ટર એ પ્રમાણેનું એમનું જીવન એ જ્ઞાનથી. આ હાઉસ મેકર એટલે ઘરનું બધું જ્ઞાન એ જાણે, ખાવા પીવા રહેવા કરવાનું બધું. ભાઈને કહેતો કે આપણને આવડે નહીં, તો હું જોયેલું છે એટલે શાક સમારી આપું, બીજું કંઈ આમ કરી આપું, તો કે વઘાર કરો તે મને નહીં આવડે. એટલે જુદા જુદા બધા જ્ઞાન છે. અને આ અધ્યાત્મ જ્ઞાન, અધ્યાત્મ એટલે જે તમને આત્માથી વાકેફ કરાવે, આત્માની ઓળખાણ કરાવે. હવે આત્માની ઓળખાણ, આત્મા શબ્દનો મતલબ શું થાય તો કીધું તે હું છું. આત્મા શબ્દનો મતલબ તે હું છું, વો મેં હું. આત્મા એટલે શું? તમે પોતે. અને આત્માનું જ્ઞાન કરવાનું એટલે શું? તમારે પોતાનું જ્ઞાન કરવાનું. હવે તમને પોતાનું જ્ઞાન થઈ જાય કે તમે કોણ છો, એટલે પછી તમને બધું જ ખબર પડી જાય. બધા નામથી ઓળખે છે. મારું નામ વિમલભાઈ છે, અને પછી એમ કહે છે કે હું વિમલ છું. મારું નામ વસ્તુ મારી છે, મારા ચશ્મા છે કહીએ તો હું ચશ્મા છું કરીને કહીએ ત્યારે પણ ના કહીએ. એટલે કહે છે એ સમજવા માટે કે આત્મા એટલે તમે પોતે, અને આત્મા એટલે બીજી શું સમજણ છે? આત્મા એટલે શું? રાજનભાઈ કીધું ને? રાજનભાઈ તમે શું નામ? ભાર્ગેશ. ભાર્ગેશ. રાકેશભાઈ, આત્મા શું હશે? બેબી ડુ યુ નો આત્મા? બેબીને પૂછ. બેબી આત્મા ખબર છે? આત્મા ઇઝ સોલ. બરાબર. મને તો બરાબર. આત્મા એટલે સોલ, અને આત્મા એટલે એનો વર્ડ, શબ્દાર્થ, એનો મતલબ આત્મા એટલે આપણે પોતે. આત્મા એટલે તે હું છું. અને આપણે કહીએ છીએ કે મારું નામ રાજનભાઈ છે, વિમલભાઈ છે, અને હું વિમલભાઈ છું. અને આત્મા એટલે તમે પોતે, તે હું છું. ને આપણે કહીએ છીએ કે હું વિમલભાઈ છું. હવે ખબર પડી ગઈ. એટલે જે જ્ઞાનથી તમને પોતાની ઓળખાણ થાય કે હું આત્મા છું, કે તે હું છું. આપણા શરીરમાં જાણવાની શક્તિ પણ છે અને કરવાની શક્તિ પણ છે. શરીરમાં 3 ભાગ છે: મનથી વિચારે, વાણીથી બોલે અને શરીરથી કરે. એમ 3 ચીજ છે. અને અંદર આત્મા પણ છે. ક્રિયાનો ભાગ બહારનો ક્રિયાનો છે, બોલવાનો છે, વિચારવાનો છે. અને અંદર આત્મા છે, તેમાં જાણવાની શક્તિ છે. હું જાણું છું કરી. એટલે આપણે શું કહે? મેં આ કર્યું, હું આમ બોલ્યો, મને આવો વિચાર આવ્યો, અને એમ કહે છે હું જાણું છું. ક્રિયાના બધા ભાગમાં આવી ગયું. કોઈ પણ જાતની ક્રિયા, બોલવાની ક્રિયા, વિચારવાની ક્રિયા, અને હું જાણું છું. પણ એક ભેગું બોલે છે. હું આવ્યો, હું ગયો,
હા હું જાણું છું. હવે આવવા જવાનું કાર્ય શરીરનું છે, બોલવાની ક્રિયા શરીરની છે, વિચારવાની ક્રિયા શરીરની છે, એટલે મનની પણ શરીરની, અને જાણવાની ક્રિયા અંદર આત્માની છે. પણ આ બંને બોલીએ છીએ. એટલે ખરેખર તમે કરો છો કે તમે જાણો છો. પણ એટ ટાઈમ્સ મેં આમ કર્યું, મેં ખાધું, હું ઓફિસ ગયો, સ્કૂલ ગયો, મેં આમ કર્યું તેમ કર્યું, હું આવું બોલ્યો, પેલા આવું બોલ્યા, આવું વિચારે છે, મને એવો વિચાર આવ્યો, અને આ બધામાં આપણે કહીએ છીએ કે હા હું જાણું છું. એટલે આ ક્રિયાઓ છે, એ ક્રિયાનો ભાગ સેપરેટ છે અને અંદર આત્મા સેપરેટ છે. એટલે અને તે હું છું કરીને એનો મતલબ થાય. તો આપણે જો એ આત્મા જાણ્યો, કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આ દ્રષ્ટિ આપી અને ઓળખાણ કરાવી કે એ કોણ છે ખરેખર. એવી જ રીતે રામ ભગવાને હનુમાનજીને આ દ્રષ્ટિ આપી હતી. દ્રષ્ટિ એટલે ઓળખાણ આપી હતી, સમજણ પાડી હતી કે તું કોણ છું કરીને. મહાવીર ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને આપી હતી. ગૌતમ સ્વામીએ હજારો લાખો લોકોને આપી, અને બધાને એ ખબર પડતા એ બધા જન્મ મરણના ભટકામણમાંથી છૂટી ગયા અને મોક્ષે ગયા. એટલે અહીંયા એ વાત આપણે સમજવાની કે કેવી રીતે આ જ્ઞાનથી આપણું આજનું વર્તમાન જીવન, પ્રેઝન્ટ લાઈફ હેપી ચેરફુલ થાય. સુખ દુઃખ આવે પણ તમને અડે નહીં. સુખ દુઃખ તો આવે પણ તમને અડે નહીં, અને તમે બધી પરિસ્થિતિમાં બેલેન્સ રહો. સામાન્ય રીતે આપણાથી બીજાને દુઃખ થઈ જાય, પણ એ દુઃખ થાય ને તો તમને ખબર પડે કે આપણાથી દુઃખ થઈ ગયું. અને આપણાથી દુઃખ થાય તો એને ભૂલ કહેવાય કે ના કહેવાય? બેબી શું કહે? આપણાથી કોઈને દુઃખ થાય તો એ ભૂલ કહેવાય, મિસ્ટેક કહેવાય કે ના કહેવાય? નહીં કહેવાય? કહેવાય. મમ્મી શું કહે છે? કહેવાય. હવે રૂલ એવો છે કે અહીંયાથી કોઈને જો દુઃખ જાય ને તો પાછું આપણા પર આવે. પેલું ઇંગ્લિશમાં કહે છે વોટ ગોઝ અરાઉન્ડ કમ્સ અરાઉન્ડ. જો અહીંયાથી દુઃખ જાય તો અહીંયા પાછું રિટર્નમાં દુઃખ આવે, ને અહીંયાથી સુખ જાય તો સુખ આવે. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ સુખનો રસ્તો એ છે કે અહીંયાથી કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ. થાય તો સુખ થવું જોઈએ, તો રિટર્નમાં સુખ જ આવશે, જે આપણને જોઈએ છે. એક જીવન જીવવા માટેની આ એક ચાવી કે આપણાથી કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ. અને દુઃખ થઈ જાય તો આપણે માફી માંગી લેવાની. અને સુખ તો આપણને જોઈએ જ છે, એટલે કે કરેક્ટ, લેટ ઇટ હેપન. અને આત્મા જાણવા મળે તો પછી આ સુખે આવે ને, કારણ કે સુખે આવીને જતું રહે છે અને દુઃખ પણ આવીને જતું રહે છે. પણ કે ના મને સુખ જોઈએ છે તો સારી વસ્તુ છે, પણ પછી તમને સુખ આવીને જાય ને તેમાં પણ તમે બેલેન્સ જ રહો. દુઃખ અડે નહીં અને સુખ ચોંટી નહીં જાય. ખબર પડી? દુઃખ અડે નહીં અને સુખ ચોંટી નહીં જાય. બંનેમાં તમે આનંદમાં રહો. બોલો. આપણી ભૂલ થાય છે ને, અને ભૂલ ખબર પડતી નથી, એટલે ભૂલ કરેક્ટ થતી નથી. એનો બોજો મોટો છે. હવે જે ભૂલ તો થવાની, પણ આપણે એને સુધારતા જઈએ, કરેક્ટ કરતા જઈએ, તો એનું અવળું પરિણામ આપણા પર આવે નહીં. એક્ઝામમાં માર્ક્સ ઓછા આવ્યા, યુનિટ ટેસ્ટમાં ઓછા આવ્યા, તો આપણને ખબર પડે કે આપણે વધારે ભણવાની જરૂરત છે કે બરાબર ભણવાની જરૂરત છે. તો તમે બરાબર ભણો એટલે કરેક્શન કરી દીધું ને તમે, તો માર્ક્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય. આપણા બધાનું મગજ છે ને બહુ સારું છે. ખરાબ મગજ કોનું કહેવાય? મેન્ટલી રિટાર્ડેડ હોય ને, માનસિક પેશન્ટ હોય ને, તેનું
એવું કહેવાય. બાકી બધાનું મગજ સારું છે. ફેલ થાય એવું મગજ નથી. આ વાત બહુ સરળ રીતે સમજવાની જરૂર. फेल થાય એવું કોઈનું મગજ નથી. हाँ हिंदी फेल हो जाता है ऐसा किसी का दिमाग है ही नहीं. बोलो तो फेल क्यों होते हैं? मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो फेल होते हैं. और फेल होने पर हमें खुशी मिलती है, दुखी होते हैं. डेफिनेटली दुखी आएगा. तो सुखी होने के लिए हमारे पर जो भी जिम्मेदारी आती है हमें अच्छे से उसको करना चाहिए. और उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है. तो वही समझ के पढ़ना डिफिकल्ट है. पढ़ना नहीं ना बाबू, ભણવાનું અઘરું છે કે ઈઝી છે? ઈઝી છે ને. પછી રમવાનું ઈઝી છે કે ડિફિકલ્ટ છે? રમવાનું ઈઝી લાગે તને? રમવાનું બેબી શું કે રમવાનું પણ ઈઝી જ છે ને. એટલે લાઈફ પણ ઈઝી છે. પણ આપણે એમ કહીએ રમવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, રમવાનું ગમે પણ છે ને, રમવામાં તમને રિઝલ્ટ સારું મળે, સક્સેસ કે ને. એવી રીતે ભણવામાં પણ એવું છે, તેવી રીતે લાઈફમાં પણ એવું છે. એટલે ये बात समझना जरूरी है. और ये समझ लिया तो आप ऑलवेज सक्सेसफुल. सफलता आपके पीछे पीछे आएगी. बोलो तो आपको क्या करना है? क्योंकि राम कथा सुनी, महाभारत सुना, वो शिव पुराण सुना, भागवत सुना, सभी कहानियाँ जीवन के चरित्र हमने सुने. लेकिन अभी हमें क्या करना है वो बता दो. क्योंकि ये दादा भगवान की कृपा से ये एक आपको मौका मिलता है. जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह दर्शन करवाए, विश्व दर्शन. लेकिन कृष्ण भगवान आज नहीं है और अर्जुन भी नहीं है. दादा भगवान ने हमें ये विश्व दर्शन कराए और हम है, और हम आपको बता सकते कि ऐसा होता है. और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो भी करवा सकते. वो करवाने से वो युद्ध लड़े, वो युद्ध जीते और मुक्त भी हो गए, यानी मोक्ष में भी गए. आपको क्या करना है बोलो? जो मैटर सीधा शॉर्ट ही कर देना चाहिए. लंबा लंबा गोल गोल घुमाने का क्या मतलब? हातिम भाई बोलो. ऐसा है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही ज्ञान दिया था. राम भगवान ने हनुमान जी को वही ज्ञान दिया था. महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को वही ज्ञान दिया था. ज्ञान में बदलाव नहीं होता है. ज्ञान वही का वही है. ऐसा है. और वो मिल जाने पर, इंजीनियरिंग के ज्ञान मिलने से इंजीनियर हो जाते हैं. आत्मा का ज्ञान होने पर आप भगवान हो जाते हैं. भगवान यानी जो ज्ञान से भरपूर है, परिपूर्ण है. भग यानी प्रकाश. लेकिन ये लाइट का प्रकाश भी प्रकाश है. लेकिन यहाँ पर जो भगवान कहाँ है वो नाम नहीं है, वो क्वालिटी है, गुण है. जानने की शक्ति, जानने का गुण. और आप ऐसे हो जाते हैं. बोलो. और अगर इसके संबंध में कुछ पूछना है तो आप पूछिए. दादा શું કહો છો? એવું છે. हमने सब शिविर किया प्रारंभिक. क्या गया था? भरूच. સરસ, વેરી ગુડ.
बहुत अच्छा। जान लिया तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लिया। रावत सिंह से भी लिया, प्रेम हाँ? रावत जी महाराज है ना, हाँ प्रेम रावत जी, हाँ, उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत अच्छा। श्री कृपानंद स्वामी से भी किया। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज्ञान जहाँ प्राप्त, मिलता है वहाँ लेना चाहिए। अरे वाह, ये मुझे अच्छा लगा, हाँ? ये मुझे अच्छा लगा। जहाँ से मिलता आपके है, पास भी आ गए कि आपको भी, आप भी जो ज्ञान देते ले लो। बहुत अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वरना लोग ऐसा बोलते मैंने ये वहाँ ले लिया है, अभी ऐसा काम नहीं। पूरा हो गया। हर जगह जाने। वेरी गुड। ऐसा जो खुला रखते हैं ना दरवाज़ा, तो कहीं ना कहीं सही चीज़ और आखिर की चीज़ मिल जाती है। स्वामी नारायण में भी जाने का, सब जगह जाने। बराबर है, बहुत अच्छे। तो सब घाट के पानी पिए हैं, और जहाँ जो घाट मिला वहाँ पानी पीने जहाँ के जो लिए अच्छा भी आप मिलता है वो तैयार। प्राप्त कर लेने का। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। ये एटीट्यूड आपकी बड़ी अच्छी है। बोलिए। वैसे ज्ञान तो सभी जगह सेम ही है, आपने बताया ना, राम भगवान ने हाँ, लेकिन आपको राम भगवान मिले, आपको कृष्ण भगवान मिले, आपको महावीर भगवान मिले, ज्ञान मिला, उसका मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है, वो जानने के बाद कुछ जानने की ज़रूरत रहती नहीं है, और वो जानने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जानने का परिणाम है। अगर वो आपने जान लिया है तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत रहती नहीं, और वो आपको खुद को महसूस होता है कि यस, हमने जान लिया, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान देकर वो पधारिए, जय सच्चिदानंद। वो अर्जुन के सिर पे नहीं बैठे। ये समझ में आया? किसी के सिर पर बैठना यानी वो अर्जुन के गुरु नहीं हुए। राम भगवान ने वही ज्ञान देकर हनुमान जी को शिष्य नहीं बनाया। गौतम स्वामी को महावीर भगवान ने अपना शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने उनके जैसे बनाया। जो गुरु ज्ञान देकर हमें शिष्य बनाते हैं वो आखिर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान आपको कुछ हद तक डेफिनेटली ले जाएंगे। लेकिन जब आप जिनसे ज्ञान मिला उनके जैसे हो जाते हो, जहाँ पर गुरु शिष्य का भेद रहता नहीं है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आखिर की चीज़ आपको मिल गई। और आखिर की चीज़ मिलने पर आप खुद वो महसूस करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, जब तक घर पर नहीं जाते ना तो हम क्या बोलते, घर जाना है, घर जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते पर हूँ। घर में आने के बाद, प्रवेश होने के बाद आप क्या बोलते हैं, मैं घर आ गया। अब बोलेंगे नहीं मैं रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ करके नहीं बोलेंगे। ये बात, वो महसूस करना भी तो जरूरी है ना। ऐसा है। तो यहाँ ये संभव है, और वो अगर आपको मिल जाता है फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहती है, और आपको सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। ख्याल में आया? ऐसा है। तो भी आप बोलिए। ऐसा क्यों बोला जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा? वो तो है ही ना। देखो मैं बताता हूँ, एक बात बता। आपने जो बताया नहीं, वही मैं बताता ना, वही मैं बताता हूँ। वो जो मैंने बताया ना कि वो गुरु नहीं बनते और आपको शिष्य नहीं बनाते, लेकिन वो गुरु को ज्ञानी गुरु बोलते हैं। जो ज्ञानी गुरु वे होते हैं जो आपको शिष्य नहीं बनाते, उनके पास जो संपूर्ण ज्ञान है वही आपको दे देते हैं, जिसके कारण आप उनके जैसे हो जाते हो। ये फर्क, ये बात है।
इसका मतलब ये होता है, ख्याल में। वरना सभी जगह पे, और दूसरी बात, ज्ञानी गुरु का मतलब क्या है, उनको जो पाना था वो पा चुके हैं, अभी उनको कुछ करना नहीं रहा, लेकिन उनका एक ही इच्छा है कि लोगों को ये, उनको जो प्राप्त हुआ है वो लोगों को मिले। इसीलिए वो, उनका काम यही है, वो दूसरों को देते रहते हैं। और वो तो देना एक औपचारिकता से बोलते हैं, वरना कोई ज्ञान बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर ही है। और आपको खुद को जानना है कि वो मैं हूँ, और वो जाना नहीं, लेकिन वो जानकर बैठे हैं, इसीलिए आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप हो। और वो समय, वो मिल जाने पर आपको भी एहसास होता है, वही अनुभव होता है कि हाँ वो मैं हूँ। आत्मा का आईना ऐसा है, आईना, मिरर, कि वो जैसे वो मैजिकल मिरर होता है ना, ऐसा काल्पनिक एक आईना बताया जाता है। ये जादू वाला आईना है, वो आईना में आपको जो देखना चाहो ना आपको दिखाई देता है। ऐसा हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, वो ऐसा आईना है कि जिस आईने में आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए वो आईना खुला हो जाए, वो आईना को आप देख सको, इसीलिए ये उसकी क्या बोले, औपचारिक एक विधि है, जैसे ऐसा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा मिलने के बाद आप सही मायने में स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है आप हो, आपकी आत्मा है, तीसरा कोई है ही नहीं। और तीसरी जो भी सब है ना, वो आप और आप ही हो। समझ में आया? हमें परिवार की दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये परिवार, ये मेरा परिवार है करके, लेकिन फिर आपको पता चलता है ये दृष्टि से कि सभी जगह मैं ही हूँ। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, नक्षत्र में मैं हूँ, सागरों में मैं हूँ, नदियों में मैं हूँ, पहाड़ों में मैं हूँ, जीव मात्र में बचा हुआ आत्मा हूँ, ऐसा करके आखिर में बताया। और वो मैं हूँ। तो ये वैश्विक अपनी पहचान, ये हकीकत में मैं जो हूँ, मैं सभी के अंदर हूँ, वही मैं हूँ। तो ये भेदभाव मिट जाता है, और जहाँ भेदभाव मिट जाता है वहाँ अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। भेदभाव के कारण शक्तियाँ सीमित हो जाती है, ऐसा, क्योंकि ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये आपका। जहाँ मेरा तेरा है वहाँ मर्यादा आ जाती है, लेकिन जहाँ हमारा है, हम ही है, मैं ही हूँ सभी जगह, तो वो हो जाता है। राजन भाई बोलिएगा। हाँ, सभी समस्या का समाधान है, सभी समस्या का हल है। जैसे कि आप बोले, अरे 3 हफ्ते से सर्दी हो गई है, जाती नहीं है, ऐसा कोई बोलेगी तो सर्दी की दवाई है, आपने ली, लेकिन आपको 3 हफ्ते तक वो ठीक नहीं हुआ, तो उसका समाधान होता है। कोई कहते हैं कि सर्दी हुई लेकिन ठीक हो गया, 2 दिन में ही अच्छा हो गया, और कोई बोलते हैं कि 3 हफ्ते तक हो गया, अभी भी ठीक नहीं हुई। कोई बोलते हैं 3 महीने से मैं परेशान हूँ, सर्दी जाती ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन सभी का इलाज है, और ये जितना लंबा ये चलता है ना, वो आपका भुगतान है। समझ में आया? ये ऐसा क्यों, एक को 2 दिन में ख़त्म हो गया, और किसी को 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, कोई तो बोलते कितने सालों से ये है, आती जाती रहती है, अभी ठीक नहीं हुई, 15 दिन में वापस आ जाती है।
दिन में 3-4 रुमाल बोले खाली करता हूँ। हर रोज का उनके 4 रुमाल होते हैं धोने में, ये बात। लेकिन सही इलाज मिल जाने पर वो चला जाता है, ये बात। और इलाज नहीं मिलता वो भी एक प्रकार का भुगतान है, वरना इलाज तो है, आपको क्यों नहीं मिला, ये बात। क्योंकि मोक्ष जो सबसे मुश्किल बात बताई है, सबसे मुश्किल रास्ता बताया है, उसका इलाज है, यानी उसका समाधान है, वो मिल सकता है। अगर मोक्ष मिल सकता है तो ये दुनिया की कोई पीड़ा ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समझ में आया? बोलो ये है। अब बोलिए क्या चाहिए? ऐसा क्यों बोलते हैं कि ज्ञान अनंत सागर जितना होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है? ज्ञान ऐसा मैं कभी बोल ही नहीं सकता हूँ कि मेरे पास सब कुछ अर्जित हो गया। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। तो हम कब मान लें कि हमें पूरा ज्ञान हो गया? जिस दिन मान लिया तो फिर जीना ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास क्यूरियोसिटी नहीं रहती है कुछ जानने की। बराबर, इसीलिए मैंने कहा पर वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। ऐसा है ना, जब मैं या तो फिर इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि हम थक गए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी थकना नहीं चाहिए। वो बात ठीक है, पर मीनिंग ऐसा हो सकता है क्योंकि ज्ञान तो खत्म हो ही नहीं सकता। ज्ञान खत्म नहीं होता है, लेकिन वो जो अनंत ज्ञान है ना, वो आपको मिल जाता है। देखो, आप ऐसा एक कल्पना करते हैं, इसलिए हमने अभी ये आज की शुरुआत ऐसे ही करके ज्ञान क्या चीज़ है, आप ज्ञान किसको कहते हैं, तो बोले ज्ञान अनंत है। जैसे कि IT इंजीनियर, आप क्या हैं? IT इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप IT, आप बिजनेसमैन, बराबर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर वो स्कूल में जाती है, होम मेकर, फिर कोई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, बराबर है। ये सभी के अंदर वो जानने वाला तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं। लेकिन ये डॉक्टर है, उनके घर में स्विच बिगड़ गई ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन करते, हेलो स्विच बिगड़ गई है, रिपेयर करना है, उनको बुला लेते। हम बीमार हो गए तो हम डॉक्टर को फ़ोन करते, ये तकलीफ़ हो गई है, ऐसा करके। इसीलिए क्या कहा कि सभी के अंदर वही जानने वाला आत्मा है, लेकिन इन्होंने IT का जाना, उन्होंने मेडिसिन का जाना, हमने इलेक्ट्रिकल का जाना, कोई सिविल का जाना, कोई फार्मेसी का जाना, कोई बिजनेस का जाना, वो घर का जाना, वो सभी ज्ञान शक्ति को इकट्ठा करे ना, वो एक आत्मा में है। सभी की ज्ञान शक्ति को इकट्ठा करे, वो एक आत्मा में है, निहित है। अभी आप कितना उपयोग करें वो आपके ऊपर है। समझ में है? उपयोग करना अलग बात है, पर अर्जित करना अलग बात है। वही इसी नहीं मैं समझा, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर हो गए तो क्या वो इंजीनियर हो पाएंगे? चलो वो इंजीनियर भी हो गए। मैं वो बात से सहमत हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं IT में कर रहा हूँ, मैंने MCA तक पढ़ा, ठीक है, उसके आगे भी पढ़ाई है और उसके आगे भी पढ़ाई है, वो ख़त्म नहीं होती है। पर मैंने क्या बोला, बस अब मैं ख़त्म, यहाँ से मैं अभी नहीं पढ़ाई करूँगी, या तो मैं कोई ज्ञान अभी IT में भी आगे नहीं जाऊँगा। डॉक्टर भी ऐसा होता है, बराबर, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, ख़त्म मेरी। कहने का मीनिंग है कि अब मैं यूज़ करूँगा जो भी ज्ञान मिला है उसका, पर आगे जाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। वो क्यों होती है? वो ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि वो जो ज्ञान है ना, वो बाहरी ज्ञान है, एक्सटर्नल नॉलेज है, और ये जो है वो इंटरनल नॉलेज है जो लाइफ और लिविंग से जुड़ा है। जैसे कि हम है, आई एम, और वो जब हमें पता चलता है तभी पूरा समाधान हो जाता है। इसीलिए कहा वो जानने के बाद कुछ जानने का रहता नहीं है, वो ज्ञान हमें जानना चाहिए।
कि वो जानने के बाद आपको सब कुछ जानने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और आप अनुभव करते हैं। आज की मर्यादा भी आप अनुभव करते हैं कि मेरे पास तो बस इतना ही ज्ञान है, लेकिन यह जानने पर आपको पता चलता है कि मैंने सब कुछ जान लिया। और वो एक भूमिका आती है कि जहाँ पर आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ मैंने जान लिया। उसको थकावट नहीं बोलेंगे, वो कभी थकेंगे ही नहीं आप, क्योंकि वो क्रिया वाला ज्ञान नहीं है, वो हमारा स्वाभाविक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान है जो हमारी खुद की अमानत है। वी आर ट्रेजर ऑफ दैट इनफाइनाइट नॉलेज, लेकिन वो ट्रेजर हमारा खुला नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को खुलवा दिया था, राम भगवान ने हनुमान जी को खुला दिया। तो इस तरह से जब खुल जाता है तो आप खुद महसूस करते हैं कि हाँ मिल गया। और इसके कारण सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अज्ञान कि जहाँ पर हमें एक दूसरों से भेद रहता है। भेद समझते हैं ना, आप और मैं, आप और मैं। और जहाँ पर ये भेद मिट जाता है ना, वही आपकी कोई मर्यादा नहीं रही। समझ में आया? और वही ज्ञान जिसे आप सभी से अभेद हो सकते हैं, वो आखिर का ज्ञान। समझ में आया ये बात? तो वो किस तरह, भेद का कारण क्या है और अभेद कैसे हो जाएंगे आप? वो ज्ञान से ही आप अभेद हो जाएंगे कि आप जो है वही मैं हूँ, आपके अंदर जो है वही मैं हूँ। अभी उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। चलो भाई, माफी मांग करता हूँ मेरी वजह से। किसके लिए? लेट आ गया। लेट तो क्या, गाड़ी लेट आई तो आप क्या करेंगे? देखो, 6 पत्थर की शिलाएं, 6 पत्थर की शिलाएं। पहले पत्थर में से कृष्ण भगवान बनाए, दूसरे पत्थर में से राम भगवान बनाए, तीसरे पत्थर में से महावीर भगवान बनाए, चौथे पत्थर में से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनाई, 5वें पत्थर में से प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर साहब की मूर्ति बनाई, और छठा पत्थर ऐसा ही रखा शिला। अभी कोई कृष्ण भगवान वाले आए, वो कहाँ जाएंगे? कृष्ण भगवान के पास जाएंगे, मेरे भगवान करके नमन करेंगे। राम भगवान वाले आएंगे, हिंदू आएंगे तो राम भगवान के पास जाएंगे। उसी तरह से महावीर भगवान वाले आएंगे, वहीं करेंगे। दूसरे को ऐसा करेंगे बस, लेकिन उनके अधिष्ठाता देव को, भगवान को वो लंबे होकर नमस्कार करेंगे। उसी तरह से क्रिश्चियन, लेकिन वो छठा पत्थर था ना, पत्थर, उसके पास कोई नहीं गया। बल्कि सभी मूर्तियाँ ऐसे ही पत्थर में से बनी, लेकिन इसमें कोई मूर्ति बनाई नहीं है, ऐसे ही रखा है। समझ में आया? बराबर है। सभी का पत्थर, केमिकल केमिस्ट्री बोलते हैं ना, सभी का सेम ही है, लेकिन सबको अलग अलग बनाने से अपनी मान्यता के अनुसार लोग उनका पूजन, उनका आदर, सम्मान, नमस्कार किया। उसी तरह से हकीकत में कोई भी दो व्यक्ति एक सरीके दिखते नहीं है। क्यों? हेलो, आपके पीछे, हाँ, क्यों दो एक सरीके नहीं दिखते? हाँ, भगवान ने इसे डिफरेंट क्यों बनाया? डिफरेंट अगर बनाते, अगर चलो बनाया डिफरेंट, तो भगवान तो किसी, भगवान के अंदर भेदभाव हो सकता है? हमारा हृदय क्या बोलता है, हमारा हार्ट क्या बोलता है? भगवान में भेदभाव होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है। तो फिर भगवान ने अलग अलग क्यों बनाए?
वो भी बात है। एक हम समझ सकते हैं कि भगवान में भेदभाव नहीं है, वो हम मानते हैं, सब अलग अलग है वो मानते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने ये सब बनाया। तो ये तर्क से हम इतना कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि भगवान अगर बनाते तो सभी एक तरीके बनाते, क्योंकि भगवान में भेदभाव नहीं है। वो भी बात है, भगवान में भेदभाव नहीं है। यानी एक कल्पना से, अनुमान तो समझते हैं ना, एक अनुमान से हम कह सकते हैं कि भगवान ने ये नहीं बनाया, क्योंकि भगवान में भेदभाव नहीं है, और भेदभाव नहीं है तो वो सभी को एक तरीके ही बनाते। और तो और कुछ लोग सुखी है, कुछ लोग दुखी है, ऐसा क्यों है? बेटी आपका नाम क्या है? हाँ, विधि। ओ, तो विधि मैंने बोलो कि कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, ऐसा क्यों होता है? किसी को अच्छा मार्क्स आता है, किसी को बुरा मार्क्स आता है, ऐसा क्यों है? फिर भगवान ने बनाया तो सभी एक ही तरीके इंटेलिजेंट नहीं होने चाहिए? मोटे थी वो। जिसने ज्यादा मेहनत की हो उसको ही अच्छा फल आएगा। अच्छा, तो भगवान ने बना दिया, लेकिन अपनी मेहनत के अनुसार हमें फल मिलेगा। लेकिन कोई कम मेहनत क्यों करता है, कोई ज़्यादा मेहनत क्यों करता है? उसका भी तो कोई कारण होगा कि नहीं? हाँ, क्यों कोई आलसी है, पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ता नहीं है, और कुछ है वो बहुत मेहनत करते हैं। जिसमें इंटरेस्ट वो ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट वाले भगवान ने क्यों बनाया? ऐसा है ना, अगर भगवान ने बनाया तो सभी के अंदर जो भी कुछ मसाला है वो सब भगवान की ही देन है ना। तो ये अलग अलग इच्छाएं या अलग अलग इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? अगर भगवान ने बनाया है तो सबको एक सरी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और हम भगवान किसको कहते हैं? विच गॉड? एक एग्जाम्पल देता हूँ। दादा भगवान 100 years बैक आए, कृष्ण महावीर भगवान 2600 years बैक आए थे। वो ह्यूमन फॉर्म में थे, मनुष्य रूप में ही थे। कृष्ण भगवान 5000 years बैक आए, राम भगवान अबाउट 10,000 years बैक आए, और वो सब मनुष्य ही थे। पैगंबर साहब कभी आए थे? 1400 हाँ, 1400 साल 1400 years बैक। बोलो, ये समझ में आया? अलग अलग टाइम पर ऐसे महापुरुष आए और उन्होंने वही समझ देने का प्रयास किया जिनको वो समझ में, उनका काम हो गया। और भगवान हम जिसे कहते हैं वो क्या बताया है? भगवान नाम है कि विशेषण है? विशेषण सुनिए, एडजेक्टिव और नेम। भगवान means one who is full of light, one who is full of knowledge, adjective, correct? तो विशेषण है, तो आपके अंदर भी वो गुण प्रकट हो गए, वो क्वालिटी प्रकट हो गई, वो एडजेक्टिव यानी क्वालिटी आ गई, तो आपको भी लोग भगवान कहेंगे। बराबर है, ऐसा है। इसीलिए भगवान सभी के शरीर में है, प्रकाश स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा, ले ऐसा है। समझ में आया? और ये हमारे अंदर वो है, उनको हमने जान लिया कि वो मैं हूँ। ये बाहर तो नाम आत्मा को दिया जाता है कि शरीर को दिया जाता है, आत्मा को कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो अनामी है। और जो ये बताया, ये 6 एग्जाम्पल दिया ना, उससे हमें पता चलता है कि सभी
एक ही मिट्टी से बने हैं। शरीर अभी जैसे कोई 6 ये धर्म वाले 6 है, सबको हमने अग्नि संस्कार किए और सबकी रक्षा लेके आए, तो वो सबकी राख जो है उसको केमिकल एनालिसिस करे तो वो डिफरेंट होगी कि सेम होगी? सेम। किसी का बॉडी का पार्ट है, ये पार्ट यानी फ्लैश, वो फ्लैश देख के पता चल सकता है कि ये बहन का है कि भाई का है? नहीं। हिंदू का है कि मुस्लिम का है? नहीं। बोलो। एनिमल का है कि प्राणी का है? कुछ कुछ पता चल सकता है क्योंकि वो वास्ट डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं पता चलता है। इसीलिए क्या बताएं, सभी एक ही मिट्टी के बने हैं। अब ये एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पानी की बोतलें हैं 6, एक में लाल कलर डाला है, कैसा पानी हो गया? लाल पानी। दूसरे में पीला पानी, पीला कलर डाल दिया, कैसा पानी हो गया? पीला। फिर तीसरे में ब्लू कलर डाल दिया, नीला पानी हो गया। बराबर है? 3 हो गया। चौथे में मिट्टी डाल दी, मिट्टी, तो क्या बोलेंगे? गंदा पानी। बराबर है? और 5वें में डिस्टिल वाटर है, बिल्कुल प्योर वाटर है। अभी ये 5 बोतल में पहले बोतल को देखें, क्या बोलेंगे? लाल पानी है, पीला पानी है, नीला पानी है, गंदा पानी है, स्वच्छ पानी है, डिस्टिल वाटर है। अभी प्रश्न ये है कि वो दूसरे 4 में डिस्टिल वाटर है कि नहीं? वो विधि है ना, लेकिन अगर लाल कलर निकल गया तो डिस्टिल वाटर ही है। पीला कलर निकल गया, निकल नहीं सकता। नहीं ऐसा किसने कहा? वो डिस्टिल कैसे करते फिर? दे रिमूव इम्प्योरिटी ना, दे रिमूव इम्प्योरिटी। तो कहीं ना कहीं वो था ही, लेकिन हमने स्पेसिफिकली लाल कलर डाला, पीला कलर डाला, नीला कलर डाला। तो ओरिजिनली सभी में डिस्टिल वाटर का पार्ट है ही, प्लस रेड कलर, प्लस येलो कलर, प्लस ब्लू कलर, प्लस इम्प्योरिटी। और 5वें में तो कुछ ही नहीं है, नेट डिस्टिल वाटर है। समझ में आया? तो ये जो सुपर इम्पोजिशन हुआ, सुपर इम्पोजिशन जो सुपर इम्पोज समझते हैं ना, एडिशन जो हुआ, इसीलिए अलग दिखाई देते। वो मूर्ति अलग से बनाई, इसीलिए राम भगवान दिखाई दिए, कृष्ण भगवान दिखाई दिए, महावीर भगवान दिखाई दिए। ख्याल में आया? इसीलिए बताया कि अगर हमारी वो विजन आ जाती है, उसे शिव जी की तीसरी आंख बोलते हैं। सभी को तीसरी आंख है? आपको है तीसरी आंख? तो मम्मा को पूछो, पता चलेगा। सबको ये तीसरी आंख होती है। विधि आपको है तीसरी आंख? बाप रे। उसे शिवाज आई बोलते हैं, शिव जी की आंख बोलते हैं। वो उसे ये तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। और ये ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो हमें ये पूरा दर्शन यानी समझ में आ जाता है कि किस तरह से सभी के अंदर आत्मा है, सभी का शरीर एक ही मिट्टी का बना है, जिस तरह से वो एक ही पत्थर की मूर्ति बनी है। सभी के अंदर वो जो पानी है वो डिस्टिल वाटर ही है, लेकिन सभी में इम्प्योरिटी अलग होने से अलग अलग दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो ये तीसरी आंख का कमाल है। ये तीसरी आंख खुल जाती है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ तो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं। किसी का जन्म वैष्णव फैमिली में हुआ, वो कृष्ण भगवान को मानते हैं। किसी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, वो राम भगवान को मानते हैं। किसी का जन्म जैन परिवार में हुआ, वो महावीर भगवान को मानते हैं। उसी तरह से जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो किसी को ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, अगर वो उनका नकाब उन्होंने बदला नहीं है। नकाब यानी
किसी को देख के, क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं वगैरह करते हैं तो बोले ये मुसलमान है, कोई ऐसा रखते हैं तो बोलते हैं ये ऐसा करके। लेकिन हिंदू और जैन में मुश्किल है, लेकिन अगर वो टीका किया तो पता चल जाता है ये स्वामीनारायण वाले हैं, ये वैष्णव वाले हैं। सही है। वो शिव जी वाले 3 रखियाँ लगाते ऐसा करके, तो हमें पता चलता है कि ये शिव जी वाले हैं। अगर वो नहीं करे तो कहीं भी पता चलता है कि इनकी मान्यता क्या है। समझ में आए? तो ये मान्यता तो हमारे पर आ पड़ी है, क्योंकि वहाँ वो परिवार में मेरा जन्म हुआ। और क्या बोलते हैं, हम तो शिव जी वाले हैं, हम तो जैनी हैं, हम तो हिंदू है, हम वैष्णव है, हम मुस्लिम है, हम ईसाई है। समझ में आया? तो ये जो मान्यता है वो स्वाभाविक है, लेकिन उस मान्यता को ही दृढ़ता से रखना हम वो नहीं है, तो वो भेदभाव का कारण नहीं है, भेदभाव का कारण बन जाता है। और भेदभाव है उसको हम नकारते नहीं हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये तीसरी आंख से समझ लेते हैं बाहर से यह मान्यता अलग होने पर भी अंदर का मसाला सबका एक ही है, तो फिर झगड़ा नहीं रहेगा। देखो आपके फैमिली में कितने लोग हैं जो आप, हाँ 4 है, चारों जो है वो एक तरीके दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी आपको अंदर से पता है ये मेरा परिवार है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। सही है। एक पारिवारिक समझ के आधार पर आपको भेदभाव नहीं रहता है, फिर वो कहेंगे वो परिवार वाले हैं। सही है। अभी एक मान्यता ऐसी हो जाती तो बोले ये हमारी सोसाइटी वाले हैं या हमारे कॉम्प्लेक्स वाले हैं। कोई 2 आइडेंटिकल नहीं है या सिमिलर भी नहीं है, वो सोसाइटी वाले हैं। फिर हम ये कहते हैं नहीं ये सब भारतीय है, और 2 भारतीय कभी भी एक तरीके नहीं है। उसी तरह से जैसे जैसे हमारी ये तीसरी आंख खुलती है तो हमें किसी के प्रति भेदभाव रहता नहीं है। वो बोलते हैं बट वो हकीकत है, ऑल्दो वो हकीकत है, लेकिन हमने अनुभव नहीं किए, और वो अनुभव करने के लिए ये तीसरी आंख खुलना जरूरी है। और जिसकी खुली है आपको खुलवा सकती है, और आपका खुल जाने पर आपको भी सब कुछ दिखाई देगा। आंखें खुली है तो दिखाई नहीं देगा। आप लोग सामने हैं तो मुझे प्रयास करना पड़ता कि आप है नहीं, आप है, क्योंकि ये आंखें देखती है, आंखें दिखाती है, और आप सामने हो तो दिखाई देगा। पर ये तीसरी आंख खुली नहीं है, इसीलिए वो समझ में नहीं आता है। लेकिन ये तीसरी आंख खुल जाएगी तो आपको भी महसूस होगा। ख्याल में आया? ये धर्म इम्प्योरिटीज नहीं बोल सकते हम, जैसे रेट एक्चुअली आपने जो बताया हाँ, कि वो इम्प्योरिटी हटा दो तो डिस्टिल वाटर हो लेकिन जाता आप कैसे हटाएंगे? यू मस्ट नो। राइट, इन प्रिंसिपल यू आर 100% राइट, बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड आई विजन है ना, वो इम्प्योरिटी निकाल देता है। इट हैज पावर टू रिमूव एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी एंड एवरी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, वो कैसे भी हो। बोलो, ये बात है। संजोगों के कारण आपको मान्यता प्राप्त हो गई है, और वही सही दर्शन यानी सही समझ मिल जाती है तो वो निकल जाता है। आप रहते हो, हिंदू से मिटने वाले नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में, आपकी बिलीफ में, आपकी समझ में वो भेदभाव मिट जाएगा। और ये भेदभाव मिट गया तो अंदर से वो झगड़ा बंद हो गया। नहीं तो जो हमें दूसरों को देख एक अभाव होता है या तिरस्कार होता है या डिसलाइक होती है, वो यहाँ से जाती है। अब जाके जाएगी कहाँ? सेटलमेंट के लिए वापस यहीं आएगी, और जब यहाँ आएगी तब तो वहाँ परेशान होंगे। समझ में आया? तो ये सभी के परेशानी का जड़ हम खुद ही है, और हमने समझ लिया यहाँ से बाहर जाना बंद हो गया तो आएगा नहीं। ख्याल में आया ये बात? राजन जी, आप क्या सोचते इतना सारा?
सोचने जैसी बात है कि नहीं? ये बात ये बनो कि आप समझ लो अभी, और ये समझ लिया तो पूरा समाधान हो गया। फिर जहाँ जाओ, जो करना है वो करो, ख्याल में है। लेकिन एक रूल रखना पड़ेगा, किसी को दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से किसी को भी दुख हुआ तो वापस यहाँ आएगा, तो आपको तैयारी रखना है, तैयार रहना है, ख्याल में है। ये है। और जैसे एग्ज़ाम में BD एग्ज़ाम में आपने कुछ लिखा, पेंसिल से लिखा या पेन से लिखा, और फिर आपको टाइम था आधा घंटा, पेपर ख़त्म कर दिया, आप पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं ये गलत है, तो क्या करोगे आप? ऐसे लिखा होगा, तो कैंसिल कर देंगे कैंसिल और सही लिख देंगे। और सही और मैं दूसरे पेज पे हाँ, लिख देंगे ना, लेकिन बराबर है। अभी आपको जो आधे घंटे में जितना पढ़ सके वो करेक्ट किया, और फिर टाइम हो गया तो आपको पेपर दे देना पड़ा। अभी घर पर आकर मम्मी ने पूछा इसका क्या लिखा, इसका क्या लिखा, अभी आपको पता चलता है अरे एक मिस्टेक हो गई। अभी आप कुछ कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसका जो रिजल्ट आएगा रॉन्ग का, आपको फेस करना पड़ेगा। समझ में आया? उसी तरह से जब तक हमारी ये सांसें चलती है ना, हमें जो भी हमारी गलतियां समझ में आती है ना, उसको मिटा सकते हैं। मिटाने का रास्ता है, जैसे करेक्ट करने का रास्ता है ना, जब तक आपके हाथ में पेपर है, तो उसी तरह से जब तक हमारी सांसें चलती है तो हमारे पास वो मौका है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और वो करेक्ट किया तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम का पेपर हैंड ओवर करने से पहले आपने करेक्शन जो करना था वो कर दिया, तो उसका रिजल्ट आपको बेनिफिट मिलेगा ही। ये बात तो ये करेक्शन की समझ हमारे जीवन में आती है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन हम सुधारते जाते हैं। जितना सुधार लिया उतना परफेक्ट हो जाता है, और वो तीसरी आंख से अच्छा दिखाई देता है। बोला ये शिव जी को बिल चढ़ाते हैं, वो देखा है? बिल में कितने पान होते हैं? 3 होता है। एक सीधा होता है, 2 टेढ़े होते हैं, बराबर? अभी समझ में आ गया? ये जो हमारी आंखें हैं ना, वो टेढ़ी है, और शिव जी की आंख है ना, वो सीधी है। ख्याल में आया? और अगर ये शिव जी की आंख खुल गई, यानी सीधी आंख खुल गई, तो ये टेढ़ी आंख कुछ भी दिखाएगी ना, तो वो सुपरसीड हो जाएगी ये सीधी आंख से, करेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए तीसरी आंख, ज्ञान की आंख को खुलना जरूरी है। ऐसा है। और जिनकी खुली है वो आपको खोल देते, और खुलने के बाद वो आपकी अमानत है, किसी की अमानत नहीं है। आपकी आंखें खुल गई, वो डॉक्टर को बोलते हैं ना कि दिखाई नहीं देता है, और वो करेक्शन कर देते हैं। उन्होंने तो करेक्शन कर दिया, लेकिन आंखें तो आपकी है ना, वो आपके साथ ही रहती है। उसी तरह से ये तीसरी आंख खुल जाने पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, और सभी भेदभाव मिट जाते हैं। जो जो गलतियां हैं और जो होती है वो आपको पता चलेगी, आप उसको सुधारते जाएंगे, और जैसे सुधारते जाएंगे आप परफेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि मूर्ति बनाई, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं ये मूर्ति में भी कुछ कमियां है, उसको आपने रिपेयर कर दिया, तो मूर्ति और भी अच्छी हो जाएगी। स्वाभाविक है, सही है। उसी तरह से ये जो मूर्ति है हमारी शरीर, उसमें ये सब गलतियां निकलती जाती है, तो ये मूर्ति और भी परफेक्ट हो जाएगी। ये मूर्ति तो मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं, जहाँ अंदर भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, सही है। तो ये मूर्ति तो जीवंत है, लिविंग, और अंदर साक्षात हाजिर भगवान है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते। क्यों? वो पत्थर की मूर्ति में दिखाई देते हैं, यहाँ होने पर भी क्यों नहीं दिखाई देते? आपने कहा जब हमारी थर्ड आईज ओपन होती है तब वो ज्ञान का पूरा भंडार हमारे सामने आता है, स्पष्ट दिखता है। पर जब शिवजी भगवान की थर्ड आईज खुलती है
तब उनको ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? शिव जी को गुस्सा क्यों आता है? ये जरा पीछे रखो ना, इसको पीछे रखो जरा। हाँ बस उधर रखो, बहुत अच्छा है। देखो, मम्मा गुस्से होती है कभी? कभी पापा गुस्सा होते हैं कभी? पापा नहीं होते। चलो, मम्मा गुस्सा होती है ना, वो आपने कुछ गलत नहीं किया इसीलिए होते हैं कि आपने कुछ गलत किया इसीलिए होते हैं? कुछ गलत क्या इसलिए होता है? हाँ, और अगर आप बच्चे सियाने बच्चे हैं तो आपको सामान्य बोले बेटे विधि ऐसा नहीं करना चाहिए और आप बंद कर देते हैं तो उनको डांटने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। गुस्सा होने की ज़रूरत पड़ती है? इसीलिए शिव जी भी गुस्सा होते हैं। शिव जी, और जब वो डांटते हैं मम्मी या ऐसा बोलते हैं तो उनका हृदय से आपके साथ का कनेक्शन टूट जाता है? नहीं, उन्हें पर भी हम मम्मा करके याद करते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा डांट के भी उनका दिल का तार आपसे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब आप सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो उनको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, और डांट के भी वो तार जुड़ा हुआ ही रहता है। उसी तरह से शिव जी तो ऐसा नहीं बोलना चाहते, वो परम पिता है। परम यानी सभी के पिता है, देवों के देव महादेव करके बोलते हैं ना, समझ में आया? तो जैसे डैडी मम्मी की जिम्मेदारी है ना अपने बच्चों की, तो शिव जी की तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये सारे विश्व के सब मनुष्य है वो उनके बच्चे हैं। तो फिर उनको कोई बच्चा अगर ठीक नहीं रहता है तो उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। और गुस्सा होके भी मम्मी के जैसे कैसे तार जुड़ा हुआ था ना उसी तरह से शिव जी का तार कभी किसी से टूटता नहीं है। इसीलिए शिव जी गुस्सा भी होते हैं, डांटते भी हैं, और फिर भी वो शिव जी को प्रभु मेरी गलती हो गई, आप नाराज मत हो, मैं गलती नहीं करूंगा, बस मैं कह देता हूँ नहीं करूंगा अभी। तो शिव जी वो शांत हो जाते हैं। समझ में आया? वरना मम्मी क्यों डांटेगी? उनको डांटना अच्छा लगता है? पूछो, तो डांटना अच्छा नहीं, कोई मम्मी को डांटना अच्छा नहीं लगता है। मुझे मालूम है, मैं इतना शरारत करता था तो मुझे बेलन से मारते थे, झाड़ू से मारते थे, डंडे से मारते थे, और मारने के बाद बाथरूम में चले जाते थे। बाथरूम में क्यों जाते? फिर बाहर आता हूँ ना, आते तो मैं उनकी आंखें गीली देखता हूँ, रोते रोए, फिर और पड़ती है मुझे। समझ में आया? वो मारने के बाद भी वो रोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तभी ये छोटा था तो समझ में नहीं आया, मैं मजाक करता था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो मारते क्यों थे, और मारने के बाद भी वो रोते थे, और वो उनका तार कभी दिल का हमारे से टूटा ही नहीं, कभी भी बिल्कुल जुड़ा हुआ रहा। तो जैसे मम्मी का प्रेम बच्चों पर होता है ना, वैसे शिव जी का प्रेम सभी मनुष्य के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर है। लेकिन जब कोई समझते नहीं है ना, तो उनको करना पड़ता है, वो सहना पड़ता है। ऐसा है। तुम्हें वेरी गुड थिंकिंग बोलो, ऐसा है। तो ये तीसरी आँख खुल जाए ना, ऐसी प्रार्थना करनी है, ये और ये खुल जाती है, हमारा काम हो गया। बोलो, आपको माता जी का दर्शन भक्ति करनी है, माता जी, चलो हम एक माता जी का नाम बोलते हैं, सरस्वती माता जी, फिर आद्य शक्ति अम्बा माता जी, फिर खोड़ियार माता जी, बराबर है ये तीन, लक्ष्मी जी, उसको क्या बोलते हैं? ये सभी शक्तियाँ, सरस्वती माता की शक्ति, खोड़ियार माता की शक्ति, आद्य शक्ति अम्बा माता जी की शक्ति, फिर लक्ष्मी जी की शक्ति, ये शरीर में है। ये शरीर पार्वती है। लेकिन जब तक अंदर शिव जी जागृत नहीं होते, प्रकट नहीं होते, तो ये प्रकृति पार्वती यानी दिव्य नहीं बनती। इसीलिए शिव शक्ति प्रकट होनी चाहिए। शिव शक्ति यानी शिव जी की ये शक्ति है, शरीर शिव जी की शक्ति यानी आत्मा की शक्ति है। आत्मा कार्य नहीं कर सकता,
आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान से परिपूर्ण है। क्रिया की शक्ति शरीर में है, बोलने की शक्ति शरीर में है, सोचने की शक्ति शरीर में है। समझ में आया? तो ये माता जी की आराधना करने से हमने जो माता जी के कानून तोड़े हैं वो कानून को हम सुधारते हैं, यानी फिर से पालन करते हैं, तो उससे वो शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए वरना मनुष्य को लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती है, लेकिन कोई कमी महसूस करते हैं ना, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के कानून तोड़े हैं। लक्ष्मी जी का कानून क्या है पता है? सभी के अंदर नारायण स्वरूप भगवान रहे हैं। वो शिव जी है ना, वही नारायण स्वरूप है, आत्म स्वरूप वही नारायण स्वरूप है। हम लोगों की टीका निंदा करते हैं, बॉस की सबसे ज़्यादा होती है, नहीं करते बॉस? किसी को बॉस अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे जिनकी भी हम टीका निंदा करते हैं ना, तो वो निंदा अंदर के नारायण को पहुंचता है। अगर वो नारायण को पहुंचेगा तो उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे पर होगा कि नहीं होगा? वहाँ पत्नी क्या बोलते हैं? जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं होता मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसा होता है। इसीलिए जहाँ नारायण की अवहेलना होती है वहाँ लक्ष्मी जी दर्शन नहीं देते। समझ में आया? तो लक्ष्मी जी की आराधना करने से हमारी टीका निंदा बंद हो जाती है, और वो बंद होने पर लक्ष्मी जी वापस कृपा बरसाती है। समझ में आया? उसी तरह से वाणी का दुरुपयोग किया, किसी को दुख हुआ ऐसा बोलते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगे ऐसा बोलते हैं, डांटते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं। तो ये सब वाणी की शक्ति जो हमारी है उसके ऊपर ग्रहण लगता है। और सरस्वती माता जी की आराधना करने से, सरस्वती माता जी की आराधना करने से ये गलतियाँ मिट जाती है, ग्रहण निकल जाता है, सरस्वती माता जी प्रकट हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये सभी देवी देवता जो है वो हमारे प्रकृति की शक्ति है, और वो जब गलती होने पर जो ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण को निकालने के लिए वो आराधना है। ऐसा है। जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट में आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ लिया तो उसका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। ये बात है। बोलिए। बोलिए। यहाँ बोलने का क्या बोले नियम है, बोलेंगे तो बात निकलेगी। लाते देना जरा प्लीज। ओके, दे दो मुझे। नहीं कवर। ओके, बेटर। बोलो। हेलो। ऐसा है सब। चलो। इसलिए कहा तीसरी आँख खोलनी है तो बता देना, तो हम कुछ करेंगे। ऐसा है। वो पंडित जी शादी करते हैं ना, ऐसा हम अंदर के शिव जी को जागृत करके हम चले जाते हैं। शिव जी आपके पास रहते हैं, और अर्धनारी स्वरूप बोलते हैं ना, देना भाग शिव जी का है, बायां भाग पार्वती का है, वो आपके अंदर खुल जाएगा और ये तीसरी आँख खुल जाएगी। फिर मजा करो। देखो, पापा मम्मी होते हैं तब आप शरारत ज़्यादा करते हैं, या पापा मम्मी घर पर नहीं होते हैं तब शरारत ज़्यादा करते हैं? जब पापा मम्मी घर में होते तब शरारत ज़्यादा करता है, जब पापा मम्मी घर में नहीं होते तब उनका शरारत। अच्छा, हमको तो ये उल्टा लगता है। और दूसरी बात, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लास में टीचर होते हैं तब सब बच्चे ठीक से बैठते हैं,
या क्लास में टीचर नहीं होते हैं तब दंगा, आवाज़, बातें टीचर नहीं होती है तब करते हैं या टीचर होती है तब करते हैं? जब टीचर नहीं होता तब हम करते हैं। सही है ना? ऐसा है। घर में तो- तो ऐसा होता है ना कि हम बाहर चले गए तो घर में अकेले हैं, तो अकेले क्या मस्ती करेंगे? क्लासरूम में तो बहुत बच्चे होते हैं, मस्ती नहीं, वो करने अलग वाले बात है, होते हैं। लेकिन कुछ भी शरारत करना है तो वो तो फ्रेंड आ गए घर में, समझो। हाँ, तो चलो करेंगे आपके ना। फ्रेंड आ गए घर में, अब पापा मम्मी घर में नहीं है तो क्या होगा? दंगा ही होगा ना पूरा, ना, बराबर है। उसी तरह से शिव जी अंदर जाग जाने से, ये तीसरियाँ खुल जाने पर हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा करना, वो सब संयमित हो जाता है। समझ में आया? वेरी प्रेजेंट अभी है, अंदर है, लेकिन वो जागृत नहीं है, वो सुषुप्त है। प्रेजेंस है बट एज गुड एज एब्सेंट, पैसिवली प्रेजेंट। और ये तीसरियाँ खुल जाने पर एक्टिवली प्रेजेंट हो जाते हैं, और एक्टिवली प्रेजेंट होने पर वो जागरूकता से काम करते हैं। बोलो, अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बोलिए अब। ये बेटा, महादेव जी ने हाँ। पार्वती जी ने अर्धनारी नटेश्वर का वो क्या कहते हैं, स्वरूप क्यों लिया? हाँ करेक्ट, अर्धनारी नटेश्वर का स्वरूप क्यों लिया? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वो हकीकत है और वो हकीकत आप जानते नहीं हो। आपको तो ऐसा ही लगता है मैं विधि हूँ, सही है, मेरा नाम विधि है, सही है, मैं 10 साल की हूँ, 12 साल की हूँ, बराबर है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर शिव जी है, वो जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन है। अगर शिव जी नहीं है तो वो पत्थर है, नॉन लिविंग। एवरी लिविंग बीइंग के अंदर शिव जी है। सोल इज शिवा इनसाइड, एंड आउटसाइड बॉडी इज जीवा। समझ में आया? जीव है और अंदर शिव जी है। और जब जिनको महसूस होता है, अनुभव होता है कि मेरे अंदर शिव जी है, तो उसको बताया जाता है कि ये तीसरी आँख खुल गई। और तीसरी आँख जिनकी खुल जाती है उनको ये अनुभव होता है कि मेरे में शिव जी है और मैं शिव स्वरूप हूँ। जीव वो मेरी पहचान है, नाम है, लेकिन मैं शिव जी हूँ। जब ये होता है तब वो अर्ध नारी नटेश्वर स्वरूप जो है ना, वो आपको अनुभव में आता है। और जब ये अनुभव में आता है ना, तो वो शिव जी आपके साथ ही रहेंगे, आपको जागृत रखेंगे, आपको कोई गलती करने नहीं देंगे। और गलती अगर जल्दबाजी से हो जाती है तो आपको वो कैसे सुधारना वो बता देंगे। जैसे मम्मी हाजिर है और मम्मी के उपस्थिति में आपने कुछ गलत कर दिया तो मम्मी बता देती है ना, हे बेटे ये गलत हो गया, दिस इज नॉट राइट, डोंट डू इट अगेन, से सॉरी, बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है। ऐसा yes. ये आत्मचिंतन या मेडिटेशन करते समय क्या सोचना चाहिए? और फिर से बोलिए। आत्मचिंतन या मेडिटेशन करते समय क्या सोचना चाहिए? मन को स्टेबल कैसे करें? या देखो ऐसा है ना, ऐसा है कि आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में पहले ये लोग जो बताते हैं तो हम हमारी सांसों पर ध्यान रखते हैं। फिर आगे में वो बता देते हैं कि आप ऐसा करो, ओम का ध्यान करने बोलते हैं। ऐसा बोलना है और आपको ये खुद को सुनना है, ऐसा है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जैसे आप मैनेजर है ना, समझो कंपनी में आप मैनेजर हो, मैनेजर को काम करना नहीं आता है, मैनेजर को काम करवाना होता है। और जहाँ गाड़ी अटक जाती है तो उनको मार्गदर्शन करना, कहते हैं ऐसा करो, बराबर है। तो मैनेजर
उठते रहेंगे तो काम अच्छा होगा कि सो जाएंगे तो काम अच्छा होगा? या अगर वो बाहर चले गए तो संभावना है ना नई काम करने की, लेकिन मैनेजर हाजिर है तो वो काम करेंगे, करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, मेडिटेशन का एक आगे का क्या बोले कि कदम ऐसा है कि सुबह से उठे आप तो आपको खुद को देखना है कि सुबह से आपने क्या क्या किया। उठे, ब्रश किया, बाथरूम गए, चाय पी। अरे चाय पीने में थोड़ी वो कड़क हो गई थी, अरे क्या ये कड़क चाय बना दी, हर रोज तो डंगी बनती है। तो ये सुनकर बहन जी को सुख होगा दुख होगा, तो आपको तुरंत पता चल गया तो गलत हो गया, हमको थोड़ी ऐसी बनानी थी, लेकिन बन गई, मेरे नसीब में ऐसी थी। तो आपको वो गलती समझ में आ गई तो आपने माफ़ी मांग ली, फिर आगे गए, ऑफिस के लिए तैयार हो गए, रास्ते में किसी ने रास्ता काटा तो आपका दिमाग खराब हो गया, अरे ये कोई ढंग है चलाने का। तो उनको दोषी देखा तो बोले नहीं वो भी गलत है, वो उनको जल्दी जाना था, चलिए वो रास्ता काट के जा रहे थे, लेट हो रहे थे तो क्या करेंगे। उसी तरह से आप सारे दिन की अवस्था जैसे आप पास हुए ना, उठते रात को सोने तक आप देख लेते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ क्या गलत सोचा या कहाँ क्या गलत बोले आप। तो वो क्रिया की भूल, बोलने की भूल, सोचने की भूल, वो धीमे धीमे करके आपको याद आएगी। तो अब देखेंगे ना, बैठेंगे तो फिर ऐसी गलतियों को सुधारते सुधारते, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो धोए हुए कपड़े पहनने का कितना अच्छा लगता है, और किसी ने कहा कि ये मुश्किल है, कल के ही कपड़े पहने हुए आप पहन लो, तो मज़ा नहीं आता है। तो उसी तरह से ये गलतियां हम करते ही रहते थे, लेकिन कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया, कभी उसको सुधारा नहीं। तो जैसे जैसे आप इस तरह से करते जाएंगे तो आपका जीवन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो चाय ऐसी कड़क बन गई या शक्कर ज़्यादा पड़ गई तो आप समझ लेंगे कि उनको तो नहीं करना था, लेकिन कुछ गलत हो गया। किसी को ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन आज मेरे नसीब में मीठी चाय पीने की, शरबत वाली चाय पीने की है, तो शरबत पी लेने का। शरबत में तो शक्कर अच्छी होती है ना, तो आज ऐसा नहीं सोचता कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं हॉट शरबत पी रहा हूँ। तो फिर वो दिमाग में ऐसा ना, आप जैसा देखेंगे ना ऐसा वो स्वीकार हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई ढंग है, ये गलत है, और बोल देते हैं तो उनको भी दुख होता है। और जब वो पीते हैं तो उनको भी पता चलता है, अरे आपने बताया क्यों नहीं कि शक्कर ज़्यादा पड़ गई। अरे आप पीने वाले थे तो आपको पता ही चलने वाला था। और अगर आप बोलते हैं तो आज थोड़ा मीठा हो गया तो क्या हो गया, उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। बाहर नहीं बोलते तो अंदर बोल लेते, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा जीवन ऐसा बैलेंस होता जाता है। तो ये इस तरह से हम मेडिटेशन का उपयोग करना है, समझ में आया, क्योंकि वो हमारी लिविंग एस्पेक्ट को करेक्ट करता है। जो सारे दिन में हम जीते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसका करेक्शन होता रहता है। और ऐसे सोने से पहले अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अगर आप ऐसा बैठ जाते हैं ना तो बहुत उपयोगी रहता है। तो जैसे ये लोग रात को सोते से पहले किचन क्लीन अप कर देते हैं, वो बोलते हैं, आप बोलेंगे कि अभी रखो, कल सब धो लेना सुबह में। अरे नहीं, आप सो जाओ, मैं 10 मिनट में काम ख़त्म करके आती हूँ, ऐसा करके बोलते। क्यों? क्योंकि जैसे रसोई घर को छोड़ नहीं सकते, गंदा नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम तो ऐसे ही सो जाते। सारे दिन में जो गलती की वो कभी सुधारी ही नहीं, कभी उसको गौर भी नहीं किया, इसीलिए ये बोझा बनता है और उसका लोड हमारे पर आता है। और जब भी हम बैठते हैं ना तो वो बोझे से मज़ा नहीं आता है, ऐसा होता है। वरना आप ऐसे ही बैठे देखो, ये सब बच्चे छोटे थे ना, सब हम भी एक छोटे ना, छोटे बच्चों को आप ऐसे ही करें तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनको भूख लग गई, चलो बराबर है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो वो हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन ये सब गलती अभी उनकी हुई नहीं है, इसीलिए उसका बोझा नहीं है। और हमारे ये गलतियाँ हुई है और उसका क्लीन अप नहीं हुआ है, तो बोझे से हम परेशान रहते हैं। ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन
कुछ न कुछ अंदर चलता रहता है, क्योंकि वो जो गलती हुई थी ना वो अभी भी ऐसी रही है, उसको करेक्शन नहीं हुआ है। और वो जैसे करेक्शन हो जाता है ना तो वही हमें बोझा रहित बनाता है। मेडिटेशन का हेतु यह है, और ये करके जाएंगे, करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत है, बहुत है। ये बात है। और जो ओवर थिंकिंग होता है बार-बार मन में, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखो एक बात है कि मैं यहाँ हूँ, चलते चलते जाता हूँ, मुझे जागृत या विजिलेंस रखना, सतर्क रहना 6 से 10 फुट की दूरी तक का जरूरी है, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 50 फुट, 100 फुट का जरूरी है? आप मुझे बताओ। 6 से 10 फुट का ही जरूरी है। उसके बाहर का अगर आप देखना भी चाहते हो, और अगर आज और अभी अगर ऐसा है, जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे वो बदल सकता है। इसीलिए क्या कहा कि आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप सतर्क रहो, जागृत रहो, देखो कि कहीं कुछ गलतियाँ नहीं होती है। तो जब वो 15 फुट 6 फुट की दूरी पर आएगा तब आपको पता चल जाएगी कि इसका क्या है और उसका क्या करना है। इसीलिए जो लंबा सोचते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण आप भावुक हो जाते हैं, विचलित हो सकते हैं। और देखो एक समझ है, एक समझ है, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल बात लेते हैं, तो आपको अभी से वो इन्वेस्ट करने बोलते हैं, वो गलत नहीं है, एक अपेक्षा से सही है। लेकिन 20 साल के बाद अगर उनका लॉ चेंज हो गया तो क्या करेंगे आप? दूसरी एक बात बड़ी अच्छी बताई है दादा भगवान ने। जो हार्ड करेंसी है ना, हार्ड करेंसी तो समझते हैं ना, करेंसी नोट्स, समझो वो एक्स अमाउंट है, 1 लाख है, वो 1 लाख करेंसी नोट की लाइफ हमारे पास, मेरे आपके पास है ना, उसका आयुष्य 11 साल है। 11 साल के बाद वो कुछ ना कुछ कारण चली जाएगी। अभी वही 1 लाख रुपया अगर आपने धंधे में जोड़ा तो उसका आयु बढ़ जाती है, उसकी आयु 25 साल हो जाती है। अभी वही 1 लाख रुपया अगर आपने सोने में रखा, प्रेशियस मेटल, सोना, सिल्वर, चांदी वगैरह, तो उसकी 75 लाइफ हो जाती है, 75 साल। और 1 लाख रुपये अगर आपने ज़मीन में डाला, वो ज़मीन तो कहीं जाएगी नहीं, सही है? तो उसका 100 साल उसकी उम्र है, समझ गए? तो अगर आपके पास 4 लाख रुपये है, अगर 4 लाख आप करेंसी रखेंगे तो 11 साल में वो ख़त्म हो जाएगी। तो 4 लाख में से 1 लाख अपने हाथ में रखा, वो लिक्विड मनी जब भी ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट कैश रिक्वायरमेंट। दूसरे लाख को आपने धंधे में डाला, तीसरे लाख को गोल्ड में डाला, और 5वें लाख को आपने ज़मीन में डाला, तो आपकी सिक्योरिटी पूरे 100 साल की होगी। समझ में आया? तो ऐसा सोच के अगर कोई एकदम भावुक होकर बोलते हैं ये हर्षद मेहता का ये क्या बोलते हैं वो सट्टा, यानी शहर में बहुत अच्छा है और सब पैसा शहर में डाल दिया, क्या हो जाएगा? डिजास्टर। जो सबका हुआ वो सही नहीं है। समझ में आया? ये बोलो, समय को सबसे मूल्यवान वस्तु क्यों कहा गया है? किसको? समय को। फैंटास्टिक क्यों बताया है? ये शरीर है ना, कितने बजे उठते हो? 6 बजे। 6 बजे। अगर आप 6 बजे नहीं उठे तो चिल्ला चिल्ली हो जाती है, हाँ। बराबर है?
फिर स्कूल में कितने बजे जाना होता है? 7:30 हाँ 7:30 7:30 को। अगर 7:30 को आप नहीं जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। स्कूल से आना, रिसेस का भी टाइम होता है, तो और फिर आप घर पर आओगे, ट्यूशन जाते हो? ट्यूशन नहीं जाना कभी भी, ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन कब जाना होता है पता है? आपका 80% मार्क आता है और आपको 95% लाना है, तो ट्यूशन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है? मैंने तो ऐसा ही किया था। 12th में मैंने ट्यूशन नहीं रखा था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स एग्ज़ाम मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 85 ही आए थे और मुझे 95 लाने थे। चलो 10 मार्क्स 15 मार्क्स का जंप लेने के लिए मैंने ट्यूशन रखा था। समझ में? ये तो एक बात है। बोलने की बात क्या है? कितने बजे सो जाते हो? लाइक 10 o'clock? 10:30 10-10:30। अभी ये टाइम टेबल जो आपके बॉडी के साथ रिलेटेड है, उसको आप बदल सकते हो। यू हैव टू फॉलो कंपल्सरीली, बराबर है? तो ये बॉडी है ना, वो समय है, बट ये समय डिपेंडेंट समय है। डिपेंडेंट समय यानी आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा जो समय है ना, जो परपेचुअल समय है, परपेचुअल समझते हो? दैट इज परमानेंट। बॉडी टेम्पररी और परमानेंट? बॉडी परमानेंट, बॉडी चेंज नहीं होती है। हाँ? जैसे हम बड़े होते हैं तो मतलब सी ऐसा है ना, वो ट्रेन आती है, अराइवल होती है, ट्रेन का डिपार्चर होता है ना, तो ये बॉडी का अराइवल डिपार्चर होता है। બેટા એવું કહેવા માંગે છે When આપણે- were you આપણે born? dead થઈ જઈએ ને તો આપણી બોડી જતી રહે ને When were you born? 2013 बराबर है? तो वो कोई जाते नहीं है कि रहते हैं परमानेंटली? जाते, तो वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी करेक्ट? तो ये बॉडी टेम्पररी है और ये बॉडी का टाइम आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसको क्या बोला? वो डिपेंडेंट टाइम है। डिपेंडेंट टाइम मीन्स यू हैव नो चॉइस, करेक्ट? बट inside our body you say there is soul. That soul is temporary or permanent? I don't know, you ask your daddy. સોલ પરમેનન્ટ આપણે ડેડ થઈ જાય તો આપણું સોલ જાય ને બોડી અહીંયા રહી જાય Does the soul die with the body? No. So soul is permanent. So then soul is called perpetual time, permanent time, and body is temporary, temporary time. That's why, and also one more thing, ऐसा बताया है कि any problem gets solved naturally, automatically as time passes. जैसे कि आपको किसी ने मारा था तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, फिर आपको याद रहता है? भूल जाते हो। सो इसके लिए क्या बताया? टाइम इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बिकॉज एज टाइम पासिस पीपल टेंड टू फॉरगेट। द मोस्ट विशियस थिंग, यानी बहुत तकलीफ वाली परिस्थिति भी आ जाती है ना, तो भूल जाते हैं। वो बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम इट हैड हैपेंड, ऐसा करके। आई डोंट रिमेम्बर। समझ में आया? सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या बताया? इफ यू हैव लर्न टू यूज योर टाइम द बेस्ट, तो आपने टाइम को जीत लिया। फिर टाइम आपके ऊपर सवार नहीं होगा। सवार होना पता है? You will play with the time, but when you don't understand the responsibility of the time, time will play on you. समझ में आया?
उसका मतलब क्या है कि यू विल रिमेन एवर रेडी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। समझ में आया? जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, आप पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, सब कुछ करते हो अच्छी, तो आपने टाइम का सही उपयोग किया तो टाइम इज गोइंग टू हेल्प यू, यू विल गेट गुड रिजल्ट। समझ में आया? बट होमवर्क नहीं किया, अच्छी पढ़ाई नहीं की, स्कूल में टाइम पर जाते नहीं हो, ढंग का खाते नहीं हो, बाहर का कचरा खाते हो बाहर का कचरा कभी कभी। ये बॉडी है ना, ये बॉडी दिस इज गॉड इनसाइड। तुम कुछ भी खाएंगे तो चलेगा कि ढंग का खाना चाहिए? पापा के पास कोई गाड़ी है? हाँ, कौन सी गाड़ी है? आई मीन वो डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है? पेट्रोल में डीजल डालेगा तो चलेगा? पूछो पापा। नहीं चलेगा। केरोसिन डालेंगे तो चलेगा? उससे में आगे पानी डाल दिया तो लास्ट हो जाएगा। फिनिश। वो गाड़ी को पूरा ओवरहॉल करना पड़ता है बोलते हैं, यानी सभी सिस्टम उसको क्लीन अप करके नए से करना पड़ता है। उसी तरह से ये हमारा शरीर है ना, वो अंदर भगवान है। भगवान कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी में नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन अदरवाइज कहाँ होते हैं? टेम्पल। करेक्ट। वेयर देयर इज गॉड इट इज टेम्पल। टेम्पल नो, वेयर देयर इज टेम्पल देयर इज गॉड। सो वेयर देयर इज गॉड व्हाट इज इट? तो जब किचन को हम रसोई टेम्पल क्यों बोलते हैं? किसको? किचन को। किसको? किचन। किचन को टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी का किचन परफेक्ट है तो घर में सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर किचन खड्डे में गिर गया, किचन बराबर नहीं है, तो घर की क्या हालत होगी? यानी पीपल हु आर लिविंग एट होम, सभी घर वालों की क्या हालत होगी? वो लोग बहुत ही भूखे हो गए। हाँ, भूखे। भूखे नहीं, बाहर का कचरा खाएंगे। अगर घर पर ढंग का नहीं बनाएंगे तो बाहर का कचरा खाएंगे, और बाहर का कचरा जाने से पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने की बात होगी। फिर क्या होगा? वंस इन अ वाइल खाना खाए ठीक है, बट वो अच्छा नहीं है। घर में मम्मी बनाते हैं तो वो पैसा लेते हैं आपसे, तो वो आपको खिलाने के लिए बनाते हैं, और बाहर वाले आपको खिलाने के लिए बनाते हैं कि पैसा कमाने के लिए बनाते हैं? पैसा कमाने। तो वो तो उनको बिजनेस करना है। मम्मी बिजनेस करते हैं? नहीं करते। तो आप खाते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, और कई बार वो बताते भी नहीं है कि ख़त्म हो गया, उनके लिए रहा नहीं ना, फिर भी बोले ले लो ले लो ले लो करके खिला दिया, और फिर वो दाल और रोटी खा लेंगे क्योंकि सब्जी आप लोगों को अच्छी लगी तो आपने ख़त्म कर दी। वो कभी शिकायत नहीं करते, अरे भाई मेरे लिए सब्जी नहीं बची है, बस अभी नहीं मिलेगी, मेरे लिए बची है, ऐसा कभी नहीं करते मम्मी। समझ में आया? ये हम जानते हैं। इसीलिए किचन इज टेम्पल एंड किचन इज सेंटर ऑफ आवर होम। और अगर वो किचन अच्छा है, परफेक्ट है, सभी की हेल्थ अच्छी है। जब फिजिकली यू आर हेल्दी, मेंटली ऑल्सो यू बिकम हेल्दी, spiritually also you become healthy, intellectually also you become healthy, emotionally also you become healthy. So everything gets to the body. समझ में आया? अरे वाह, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6th यानी 11 ईयर। बड़ा अच्छा है, वेरी गुड थिंकिंग। टाइम अभी तो है ना टाइम, लेकिन थोड़ा अभी है 5-10 मिनट। देखो समय की मूल्यवान है। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछना था उसका टाइम अभी है। आप बाद में घर पे जाके पूछोगे कि क्या होगा अभी, तो नहीं मिलेगा आपको। फिर फोन करना पड़ेगा। आई एम अवेलेबल ऑन फोन। टाइम जो है टाइम, लेकिन कोई फोन करते नहीं है, मुझे शांति है इतनी। उसको फालतू बातों में ऐसे बात सही है। नहीं करना चाहिए। एग्जाम की प्रिपरेशन जब करनी वही टाइम पे एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो मार्क आएंगे। मैं कभी एग्जाम की प्रिपरेशन करता ही नहीं था। क्या मतलब है उसका? When every day you remain up to date,
then for exam you don't have to prepare, you are already prepared. फिर आप ऐसे ही फ्लिप करेंगे पेपर पेजेस, समझ में आया? पर अगर अपने डे टू डे बेसिस पर पढ़ा नहीं है, एग्जाम पे टाइम में टेंशन, टाइम जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बार टाइम धरती पे सबसे मूल्यवान चीज क्या है? धरती पे सबसे मूल्यवान चीज आप खुद ही हो, विधि, बिकॉज यू आर लिविंग, यू आर ब्रीदिंग, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर इनर गॉड. So don't suffocate, हाँ? पढ़ी थी, उसमें कहा था कि वाटर सबसे मूल्यवान चीज है। वो बात सही है. Why? Because without water you cannot survive. फूड के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कौन? फूड खाना। फूड ऐसा है ना, फूड नहीं खाया ना तो आप सरवाइव हो सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिया ना, यू गॉन. फूड नहीं खा के करो, इफ यू कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर यू कैन सस्टेन फॉर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स. बट पानी बंद कर दिया ना, योर स्टोरी विल एंड वेरी सून. ऐसा है वो पानी के इम्पोर्टेंस, क्योंकि इट सपोर्ट्स लाइफ, उसके बगैर लाइफ नहीं है, तो वो जरूरी है. लेकिन वो पानी तो है ही, लेकिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? फॉर यू, योर बॉडी एंड यू. इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल टेक केयर ऑफ योर होल फैमिली. वो अब छोटे थे तो मम्मी पापा पीछे पड़ते थे, खाना खाया, ये किया, वो किया. अभी जो पढ़ाई करनी है वो तो आप कुछ करेंगे, लेकिन ढंग से करेंगे, समझ के करेंगे. नहीं समझ में आता पूछ लेने का. ऐसा है. बोलो बोलो, वो तो मम्मी गप्पा मारती है. अभी हम एक मंत्र बुलाते हैं और फिर प्रार्थना करेंगे, तो उसे अच्छी समझ भी मिल जाएगी और वो क्यों करना चाहिए वो. अच्छा, एक मिनट. ये गुजराती में है, गुजराती रखना, और ये हिंदी वाली है, वो हिंदी वाले ले लेते. और पेज नंबर 4 निकालना. एक मुझे दे दो, एक किताब दे दो बस, वो चलेगा, कोई भी एक. आई थिंक सो बोथ हैविंग द सेम पेज. आई थिंक सो. ओके फाइन, बोथ आर ऑन द पेज 4. ठीक है, पेज 4 निकालना. पेज 4. આપી સ્ટેક આપી દે પછી પાછી આપી દઈશું. વાંધો નહીં, લઈ જવી તો લઈ જજો. फाइन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है. ओके, रेडी. देखो ऊपर क्या लिखा है, संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र. समझ में आया? संसार विघ्न, ये जो हम जीवन जीते हैं, वो जीवन जीने का, उसको संसार बोलते हैं. और उसमें जो कोई तकलीफ आती है ना, हमें कभी कोई तकलीफ आती नहीं है, आती है. हेल्थ की तकलीफ आती है, पढ़ने में तकलीफ आती है, बिजनेस में तकलीफ आती है, जॉब में तकलीफ आती है, ये वातावरण की तकलीफ आती है. तो वो सभी को दूर करने के लिए देखो ऊपर राइट में 505 लिखा है. बोलिए देखें, उसका मतलब क्या है? सुबह में 5 बार और रात को 5 बार, शाम को 5 बार, ऐसा बोलना है. अभी मैं बोलते जाऊंगा, आप पीछे पीछे दोहराना, उसका मतलब भी मैं बोलता जाऊंगा. नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने भीतर के अरि को, यानी दुश्मनों को जीत लिया है. क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जैसे भीतर के अरि को
दुश्मनों को जिन्होंने जीत लिया है, मुझे भी जीतना है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को दादा भगवान की साक्षी में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंत जो मोक्ष में विराजमान है, जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं। मुझे भी मुक्त होना है, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो आयरीयाणम, आचार्य भगवंत जिन्होंने अरिहंत भगवान से मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए जो आचार की जरूरत है, वो आचार पालन करते हैं और दूसरों को आचार पालन करना सिखा रहे हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं ताकि मुझे मोक्ष मार्ग मिले। इसीलिए आचार्य भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय भगवंत जो मोक्ष मार्ग प्राप्त किए हैं, पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते वे अनुभव सिद्ध होते जाते हैं। मुझे भी ऐसे उपाध्याय भगवान प्राप्त करने हैं। समझ प्राप्त करनी है। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम, इस लोक के सभी साधु भगवंतों को जो सीधे सरल हुए हैं, टेढ़ापन जीत लिया है, साधक हुए हैं, कभी भी बाधक नहीं होते। फिर वे संसारी कपड़े में हो या साधु के कपड़े में हो या फिर दिगंबर हो, मुझे भी सीधे सरल होना है। सभी टेढ़ापन जीत लेना है। साधक होना है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। बिल्कुल बाधक नहीं होना है। इसीलिए इस लोक के सभी साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासनो, ऐसे 5 सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों कर्मों का भस्मीभूत होता है।
मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। जो यह मंत्र का पठन करते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन उत्कर्ष होता है और मोक्ष मार्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण जो नर में से नारायण हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं, पॉजिटिविटी प्राप्त की है, नेगेटिविटी जीत ली है। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे हैं। मुझे भी प्राप्त करना है, पॉजिटिव होना है, संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है, मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करना है। इसीलिए वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। संसार के जहर पीकर नीलकंठ हुए हैं। मुझे भी मेरा कल्याण करना है। इसीलिए वर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष शिव कल्याण स्वरूप दादा भगवान को हृदय से नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप जो मेरे में विराजमान है, जीव मात्र में विराजमान है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है और परमानंद स्वभावी है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान का जय हो, विजय हो। जय सच्चिदानंद। ये सुबह शाम 5 बार बोलना है। इसका मतलब आप समझिए कि हमें क्यों बोलना चाहिए। यहाँ इसे हमारा संपूर्ण श्रेय होता है, कल्याण होता है। अभी पेज नंबर 11 निकालिएगा। मुझे एक पीली बुक दे दो ना। नहीं उधर तो पीछे है ना, एक पीली बुक दे दो इधर। नहीं एक है ना, वो सब हिंदी येलो। आप रखो दे दो। ठीक है अभी दे दो। ये दोनों क्रिटिकल नहीं, लेकिन है ना, बहुत सारी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, यानी हमारे भीतर के जो आत्मा है वही शुद्ध आत्मा है, क्योंकि वो कभी भी अशुद्ध हुए नहीं है। हम कुछ भी करते हैं, हमें लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, किसी ने जाना नहीं, लेकिन हमारे भीतर के आत्मा, शुद्धात्मा की उपस्थिति में ये हम करते हैं। तो ये अंतर्यामी परमात्मा को ही हम प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, तिरस्कार के दोष किए हैं, राग द्वेष के दोष किए हैं, राग द्वेष के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक इनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ खूब पश्चाताप करता हूँ। और आपके समक्ष आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूँ। कभी भी न करूँ। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में हम आप में अभेद स्वरूप से भेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। यहाँ लिखा है हर रोज रात को सोने से पहले ये पढ़े। तो ये जो जो हम गलतियाँ हमें याद आती है, समझ में आती है, तो ये जो गलतियाँ की है करके आया ना दूसरे पैराग्राफ में, जो जो दोष हुए हैं किए हैं, तो ये इसको याद करके आप माफ़ी मांग लो। जैसे हम किचन साफ करते हैं, रूम साफ करते हैं, तो ये शरीर को, मन को साफ करने की ये दवाई है। इतना आपको करना है। और लास्ट में दादा भगवान हर व्यक्ति का एक यश नाम होता है, यानी उनके नाम से आप कोई चिट्ठी लिखो ना तो आपका काम हो जाता है। जैसे यहाँ कोई है, जैसे कि हम बोले कि मोदी साहब की चिट्ठी कहीं पर भी जाए तो लोग कर लेते ना, काम करना ही पड़ेगा, बोले ये तो मोदी साहब का है, ऐसा करके। तो ये दादा भगवान का यश नाम इतना ही बलवान है। आपको जो चाहिए वो उनको प्रार्थना करके कर सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। यहाँ क्या लिखा है देखो, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। यह उत्कृष्ट भाव दर्शन है, यह स्तुति है, वह भी प्रगट, सामने वाला ही पेज 11 नंबर का पेज, वह भी प्रगट हाजिर भगवान की, वह क्या फल देगी, यह हमारी कल्पना एवं बुद्धि के बाहर है। इस कीर्तन भक्ति से मन वचन काया की एकता सिद्ध होती जाती है, भटकती चित्त वृत्ति स्थिर होती है, परम शक्ति संचय होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा का प्रागट्य होता है। यह प्रत्यक्ष भक्ति है। कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट इसका गान, उच्चारण, पठन करे, इससे नगद फल मिलता है। कठिनाई और आए तो लगातार 1 घंटे तक इसका पठन गान करने से दादा भगवान कहीं से भी हाजिर होंगे और आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। मेरा दरअसल मैं मुझसे प्रसन्न दादा भगवान है, जो यह प्रकट हुए हैं और आपको प्रकट करना है। हर एक में मैं तो हूँ ही, अतः यह प्रत्यक्ष की प्रकट स्तुति है। आपको खुद को ये महसूस होगा, जो भी है सब दवाई कर लो, आखिर में कुछ समाधान नहीं होता है तो दादा भगवान की जंजीर खींचना। तो ये मैं बुलाता हूँ थोड़ा, आप पीछे पीछे बोलना। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो,
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.